Right, beta ji. So we have already started with exercise 8.3 in our previous session. Now we are going to do this from question number 3, third part. Till question number 3, second part we have done. है ना? So we are starting up with question number 3, and this is such an easy question, bache. And I think this is big enough for Janisha to read. Where is Janisha today? I was finding for the solution. How can I make it bigger? Every time Janisha asks me, ma'am, can you please zoom in a little? So this time, Janisha, is this good enough, big enough for you to read? Ma'am, है ना? big enough, ma'am. Very Right. satisfied. I had to download this file for you, but ठीक है, I got one idea of doing it. Okay, beta ji. So we are starting up with part 3. This is like one of the most easy things now. You just need to keep going with the flow, right? So this is sec A plus tan A times 1 minus sin A, and they want you to find what is it equals to out of these four. So let's not keep the focus on the option now. Let us get on to our technique of doing it. Change it I'm into the converted into most basics ones, sin and cos. So sec is inverse of cos, so 1 by cos A. If you take time to write A, you can write initially A is equals to theta and solve everything in theta. And tan is sin sine A upon by cos. cos A times 1 minus sin A. Right, bacha? At every step, put this implies ka sign. Now, if you people can see, adding up of two fraction happens by taking the LCM there. So let me take the LCM. Cos A ka LCM liya humne. Now, because both the denominators are equal to LCM, so simply copy the numerators as such. So 1 plus sin A is one bracket, and this bracket that you can see, you will copy it here, 1 minus sin A. Up a square minus b square. Now, this is, you can see 1 plus sin A and 1 minus sin A. The same thing added with the other thing once and the same thing subtracted with the other thing once. So that means this is here one identity you will write. You have to write this, bache. A plus B times A minus B equals to A square minus B square. So that will be 1 ka square minus sin A ka square. Sin A ka square is sin square A only. Right or not, everyone? By cos A. Now, tell me if you people remember these identities. Sin square theta plus cos square theta equals to 1. From this, we derived that if I transpose this sign to the other side, it will be equal to cos square theta. है ना? ऐसा ही होएगा ना? Cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. इसमें कोई problem तो नहीं है किसी को? So isn't this 1 minus sin square theta? क्योंकि 1 का square is 1 only. So 1 minus sin square theta, or A is cos square theta only, no beta? So instead of this, can I write here cos square A by cos A? Is this clear or not? Now, can we cut one thing here? Like cos square means, I'll show you what does it means. Cos A into cos A by cos A. है ना? So obviously one cos can be cut, no? So that means the answer here is cos A. Clear or not, everyone? Which option is the correct option here? D part. Clear, everyone, with this thing? Is it anything tough? Quickly do it and then we'll move on. You people want writing time here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Pausing. Now we are starting up with fourth part of question number 3. 1 plus tan square A by 1 plus cot square A is equals to. This question can be solved in two different ways. Whatever clicks you first, you can opt for that. Kavish, why is your camera off? So which option do you want to take? Do you want to take help of this identity? 1 plus tan square A equals to I will 1 take the plus identity. cot square A equals to I cosec will do square. my choosing. And this is Sec. sec square. Ma'am, we will take So both.
Yes. So one way of doing it is 1 plus tan square A can be replaced by sec square A. Right? And 1 plus cot square A can be replaced by cosec square A. कोई problem यहाँ तक? बहुत simple है. Now what is sec? Sec is 1 by cos square A. And what is cosec square A? That is inverse 1 of by sine. sine. 1 by sine square A. So now you know the fourth term is multiplied by the first term and third is multiplied with second. This is because your two fractions you're dividing here, no? So they get the last one got inversed and multiplied. So it will be sine square A by cos square A. What is that now? Can anyone help me understand? Tan What? square A. Lovely, very good. So tan square A is the answer. This is one approach of doing this, bache. A very easier one. Another is in this, like, why am I telling you this? Because it is not the only method that is correct. If you go with the other one also, that is also absolutely correct, beta. So that will be 1 plus tan square A will be, you will put tan ka value here, sine square A by cos square A. This will be a little tricky to handle. So 1 plus cos square A by sine square A. Right, bache? Now take LCM of the first fraction. That is cos square A. And now you cross here, bacha. This is cos square A plus sine square A by, now iska LCM you're taking second fraction ka, which is sine square A. Now you do cross here. So that is sine square A plus cos square A. Now I'll use the identity there. What is the One. identity? 1 Sine cos square square theta A plus plus cos square theta is 1. So 1. 1 by cos square A by 1 by sine square A. See, we have reached the same place. Now sine will be multiplied with this and this will be multiplied with cos. Wow. So sine square A by cos square A, that is tan square A, beta. Understood or not? Whatever clicks you first there in your exam, go with that. Both are absolutely correct. Okay? Noted? No, ma'am, I'm writing that. Okay. Right, beta ji. So now the question that we are starting up, it is one of the most important question. Most probably in questions may say one question is definitely there in your first exam that is coming, wherever trigonometry is one of your syllabus. ठीक है? जैसे कि एक ये question है, teachers one of the very favorites, ये वाला भी very favorite. ऐसे क्वेश्चंस में से ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है, ये लास्ट पार्ट. In fact, both of these. Yes, ma'am. These are also my favorite. So now we are starting up with question number 4, wherein we need to use the identities, prove the following identities where the angle involved are acute angles for which expressions are defined. So you have to prove LHS is equals to RHS here, right? Okay, we are starting up with this now. So this part 1 we are solving. Cosec theta minus cot theta ka whole square equals to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. Is there any identity that is clicking you here? A minus B ka whole square. Okay. So cosec square theta, cot square theta, 2 cosec theta into cot theta. हम तो इसको 1 by Let's make that, sine let's by change 1 these square. into the basic ones first. Yes. Let's change it into the basic ones first. Let's change cosec into 1 by sine theta minus cos theta by as cos theta by sine theta. है ना? It is inverse of tan. No, tan is sine by cos, so cot is cos by sine. Now squaring it equals to this, you need to prove 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. Right, bacha? Now sine theta we can take as the LCM here.
And because both the denominators are similar to the LCM, you will copy the numerators as such, 1 minus cos theta, and this is in the whole square thing. We need to prove this equals to this. Every time you have to write this either, or you have to write that this is LHS that you are solving, then you can skip writing all this again and again. So you can save some time there. Okay. If you write that you're solving LHS, then you can only write one thing there. Now this is 1 minus cos theta whole square by sin theta whole square. So let me change this whole square, like give it to both the numerator and denominator separately. Sin theta ka whole square is sin square theta only. Any problem till here? Anyone? कोई ऐसा स्टेप जो समझ में नहीं आया हो किसी को भी? मैम If I ये am क्या going a हुई? little fast. बोलो कहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चा, बोलो मैम पूरा। क्या बेटू, बोलना। देखो ना मैंने मैम क्या ये किया। क्या हो गया? बेटू बोलना मैम बच्चा, वो लिख कहाँ रहा था। प्रॉब्लम? मैम ये कोसेक, मैम ये कोसेक तो मैम कॉस का होता है आई थिंक। अभी तक ये भी याद नहीं है, पिटाई करूं? मैम मेरे को सिर्फ वही याद नहीं, मैम मेरे को आइडेंटिटीज भी याद नहीं है। तनिष तेरी मैं पिटाई करूंगी। अभी ये वीडियो मैम को बताती हूँ, यहाँ से ना टाइम मेंशन करके बताऊंगी। मैम देखो, ही इज हिमसेल्फ एडमिटिंग उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। मैम मेरे को 2 आइडेंटिटी याद है मैम, बाय हार्ट मैम, एक नहीं याद बस। सो अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? कॉसेक 1 बाय साइन होता है बेटा, साइन और कॉसेक इनवर्सेस होते हैं। अब हाउ आर वी सॉल्विंग दिस नाउ? देखो बेटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का ट्वाइस है। अभी मेरी बात एक बार सब लोग ध्यान से सुनो। सबको यहाँ क्लिक कर रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर? ए माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन लुक एट व्हाट यू वांट टू गेट टू। किधर जाना है आपको? आपको 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए न्यूमरेटर में। इफ यू मेक इट 1 माइनस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में हो जाएगा। दैट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, नो? सो व्हेनेवर you are putting up the algebraic identities there, keep it in mind where do you need to take this question to. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं लगाना है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को रिपीट कर दो, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, राइट? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अगेन, राइट? अभी डिनोमिनेटर में नाउ डू यू रिमेम्बर द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1? तो यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैन बी टेकन बाय ट्रांसपोजिंग cos स्क्वायर टू द अदर साइड, सो आई कैन रिप्लेस दिस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एनी टाइम। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? और मैम ये क्यों करना है? अभी बता रही हूँ बच्चा, यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ तक Yes. ला रही हूँ जबरदस्ती उसको। अभी कैसे देखो, अब आपको ये क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर रही हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। मैम पर यहाँ पे तो दोनों माइनस है। कौन बोला ये? मैम दोनों माइनस। कौन सा वाला दोनों माइनस है? डिनोमिनेटर की बात करिए मैम। हाँ, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ बच्चा मैं। ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये आइडेंटिटी में, ठीक है? अभी 1 माइनस कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय, अभी इसको क्या करें? ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो बच्चा, ए कैंसिल हो जाएगा, द रेस्ट इज योर आंसर। इक्वल्स टू RHS लिखेंगे इसे, डन। आपको हो सकता है क्वेश्चन के सेंटर में कोई आइडेंटिटी दिख जाए, टू अप्लाई इट और नॉट वुड डिपेंड ऑन वेयर आर यू टेकिंग इट। आप सोचो, मैं यहाँ पर अगर इसे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस 2ab 2 कॉस थीटा बना देती, तो कितना मुश्किल हो जाता है इसको मुझे इस शेप में लाने में, राइट और नॉट बच्चे? है ना, प्रॉब्लम होती ना। इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिटी पुट नहीं किया और उसी को 2 बार रेप्लिकेट कर दिया। आ रही है बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? सो इट्स नॉट लाइक कि कहीं पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी दिख रही है तो वहां लगेगी ही लगेगी। वेट देयर एंड लुक फॉर इट इफ दैट इज यूजफुल फॉर यू और नॉट।
अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? क्लियर है ना ये बात सबको? Excuse me, ma'am. बोलो बच्चा। Ma'am, can you please explain once again? यस बेटू, व्हाई नॉट? चलो लेट्स डू दिस वंस अगेन बच्चे। सो दिस इज cosec थीटा minus cot theta का whole square बेटा। The most easy way is to change them into the basic ones. Cosec 1 by sin theta के इक्वल होता है माइनस cos, ये जो होता है ये cos theta by sin theta होता है। ये याद है गौरी? कौन किसका इनवर्स होता है, किसकी क्या वैल्यू होती है, ये याद है? Yes, ma'am. ओके अच्छा, एक बार मुझे वो भी बताना कि साइंस में टेस्ट में किसी को कोई डाउट है क्या, कि कोई क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो? अर्नव, क्या चल रहा है ये कब से? कौन है पास में? और मम्मा का कॉल क्यों नहीं आया मुझे? मम्मा का कॉल क्यों नहीं आया मुझे? मैम किस लिए मैम? ग्रुप में मम्मा ने मैसेज देखा है, मैंने लिखा है कि मुझे कॉल करवाना है। इनिशियल फ्यू मिनट्स में ही मम्मा ने मैसेज रीड कर लिया था। आज बात करवाना मेरी मम्मा से, ओके? गौरी, यहाँ तक का स्टेप क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. अब बच्चे यहाँ पे ना आइडेंटिटी नहीं लगानी a माइनस बी होल स्क्वायर की, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर दोगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इस शेप में वापस उसे नहीं ला पाओगे। मुझे क्लियरली दिख रहा था 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में, तो आई सिंपली थॉट कि मैं 1 माइनस कॉस थीटा को ट्वाइस लिख देती हूँ, ताकि एक 1 माइनस कॉस थीटा मैं किसी तरीके से हटा सकूं और एक वहां रह जाए। और साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यहां से डिराइव की मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसे पुट कर दिया। अब मुझे ये दिख गया, ये a माइनस बी होल a प्लस बी बन सकता है बच्चे। a स्क्वायर 1 मीन्स 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, राइट? तो ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी एक बार, a माइनस बी एक बार, तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी एक बार और a माइनस बी एक बार, और न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। एक ब्रैकेट तो क्लियरली कट हो गया, रेस्ट इज योर आंसर व्हाट यू वांटेड टू हैव। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? Ma'am got it. Thank you. चलें, अभी और किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? राइट, सो नाउ वी आर गोइंग विद क्वेश्चन 4 पार्ट। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटू। I'm just not related to this chapter, ma'am, but मेरे को वो साइंस का भी टेस्ट था, उसमें डाउट है। कोई बात नहीं, अभी कोशिश करते हैं, टाइम बचाते हैं और डिस्कस करेंगे, Yes. ओके? So we are starting up with this part now, second part. This is cos A by 1 plus sin A, ये तो पहले ही बेसिक वंस में है, plus 1 plus sin A by cos A, and this you need to prove equals to 2 sec A। तो 2 sec A माइंड में ऐसा भी ले सकते हो कि 2 by cos A के इक्वल प्रूव करना है इसे, है ना? 2 by cos A होगा तो 2 sec A हो जाएगा ना, क्योंकि cos और sec इनवर्स होते हैं, है ना बच्चे? तो चलो हम LHS ही सॉल्व कर रहे हैं पहले। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस दिख रहा है आपको, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एंड द सेफेस्ट वे ऑफ टेकिंग सम एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ द Multiplication. थिंग्स। यस, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द थिंग्स, सो 1 प्लस साइन ए टाइम्स कॉस ए। Excuse me, ma'am. यस बेटू जी। Ma'am, right now what I thought is कि 1 plus अच्छा नहीं. Ma'am, I thought that 1 plus sin A could be cos. But that would be minus. Janisha, always keep it in mind, identities only play when you have squares here। वो अच्छा तो okay, स्क्वायर्स ma'am. का आइडेंटिटी है ना, सारी आइडेंटिटीज बोल के देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दोनों स्क्वायर है। Exactly. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, वो भी स्क्वायर्स में। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, वो भी स्क्वायर्स में। तीनों आइडेंटिटी स्क्वायर्स में अप्लाई हो रहे हैं बेटा।
Okay, एल्जेब्रिक sorry. आइडेंटिटीज That's यूज कर सकते हो आप कहीं पे और, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वहां यूज हो सकती हैं जहां पर वो स्क्वायर्स में हो। ओके, तो okay. 1 + sin a को आप cos से नहीं पुट कर सकते हो। ठीक है, सबको बात क्लियर हो गई? गुड, यू आस्क दिस। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी क्रॉस करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है तो उसके बाद तो क्रॉस करते हैं। तो इट विल बी cos स्क्वायर a, ये क्रॉस हो गया इस हैंड को, एंड दिस इज +1 + sin a होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? क्रॉस ऐसे ही करते हैं ना, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, चलो। अब देखो बच्चा, यहाँ पे मुझे प्रूव करना है, सिर्फ कॉस रखना है मुझे आंसर में। ट्राई टू लर्न द स्ट्रैटेजी हेयर बेटा। हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा ही कुछ और सिमिलर क्वेश्चन आए। द स्ट्रैटेजी हेयर इज यू वांट टू गेट रिड ऑफ साइन। साइन नहीं चाहिए आपको, कॉस में चाहिए सब कुछ। मतलब समहाउ ये साइन ये भी जाना चाहिए और समहाउ ये भी जाना चाहिए, है ना? तो देखे कैसे कर सकते हैं इनको हम गायब। अभी मैं यहाँ पर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पुट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब तक प्लस है बीच में तब तक तो वैसे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो सकता। तो आई एम ट्राइंग टू पुट हेयर द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। पहले cos स्क्वायर a लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर a + b होल स्क्वायर मैं पुट कर रही हूँ। a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab, राइट? सो दैट विल बी 1² + sin स्क्वायर a। मेरा साइन, मैं जल्दी जल्दी में स्क्रिबल कर रही हूँ, बट आई होप दैट इज क्लियर टू यू पीपल। सो 2 sin a। ठीक है बच्चा, ये इतने से पार्ट में ना बच्चा मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पुट की है, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मैं अभी ऐसे ही रख रही हूँ। आई एम नॉट ओपनिंग अप द ब्रैकेट, मेरा प्रॉब्लम नहीं मुझे इंक्रीज करना है साइन ए कॉस ए करके, क्योंकि दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी एनी हाउ, नो गेट रिड ऑफ साइंस, राइट बच्चा? अब देखो ये आइडेंटिटी लग गई क्या? साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों एक ही लेवल पे ऐड हो रहे हैं। Yes, ma'am. तो कौन सा आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसको और इसको रिप्लेस कर देते हैं 1 से। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? Did you people get this or not? Maitri, don't get distracted. And this is +1 + 2 sin a by, let's write the denominator 1 + sin a times cos a. कोई प्रॉब्लम बच्चे यहाँ पे? ओके, अब आगे देखते हैं क्या कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट इज दिस इज 2 + 2 sin a। We can समझ में take आया? 2 common. Yes, good. So 2 + 2 sin a by 1 + sin a into cos a। देखो जो होता जा रहा है ना, मैं बस करती जा रही हूँ विद द फ्लो। अब 2 कॉमन ले सकते हैं दो न्यूमरेटर में, तो दैट इज 1 + sin a by 1 + sin a टाइम्स cos a। देखो बच्चा, अब चीजें ये भी और ये दोनों पूरा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी और ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हो। किसी भी बच्चे ने अगर ये साइन से साइन कट किया ना, तो मैं घर आके पिटाई करूंगी बहुत बहुत सारी। जब तक ब्रैकेट्स के बीच में एडिशन का साइन है, आप किसी एक कंपोनेंट को नहीं कट कर सकते हो। दिस कंप्लीट थिंग कैन बी कैंसल्ड, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। दिस इज लाइक ए बी बाय ए सी, सो ए से ए कैंसिल हो सकता है। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? है ना? जब तक प्लस और माइनस होगा दो चीजों के बीच में, तब तक वो कट नहीं हो सकती। सो दैट इज 2/cos a। अब तो 2/cos a को सिंपली वी कैन राइट 2 sec a। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ किसी को? सिंपल था एकदम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे किसी को? मैम राइटिंग टाइम दे सकते हो? यस बेटू जी, मैं पॉज रिकॉर्ड Uh, कर ही रही। राइट बच्चे, सो लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट। An interesting part. There are again two ways of doing this question. One is solving both the things simultaneously. Like you keep on solving both the things, and somewhere they both become equal. That can be one easy way of doing this. One is you start from LHS and you go to the right hand side. ठीक है, देयर कैन बी टू वेज ऑफ इट। कहाँ पर दोनों वेज चेंज हो जाएंगे उसकी बात करेंगे। अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यहाँ tan a cot a दिख रहा है,
मैं हमारे हिसाब से दीज आर द सेकेंडरी वंस, बेसिक वंस तो नहीं है ये, है ना। और दूसरी साइड पे सेकेंडरी वंस नहीं है, बेसिक वंस मतलब सेकेंडरी वंस है, बेसिक वंस नहीं है, साइन कॉस नहीं है ना बच्चे। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम इन्हीं से ही स्टार्ट करें, या बोलो क्या मर्जी है आप लोग की, कैसे करना चाहते हो, बेसिक वंस में चेंज करना है या मैम इन्हीं से स्टार्ट कर दे। मैम उन्हीं से स्टार्ट कर दो। यहीं से स्टार्ट करूं। यस 1 मैम। माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए से स्टार्ट करता है। चलो ध्यान से संभालना फिर उसे। सो दिस इज 1 माइनस कॉट ए कॉट थीटा टाइम्स 1 माइनस टैन थीटा एंड दिस इज नाउ टैन थीटा। नहीं, मुझे ना ऐसा लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड करा दूंगी मैं आप लोगों को, मत करो इसे। अभी के लिए इसे बेसिक वन में ही चेंज करो, दोनों साइड को बेसिक वन में चेंज करेंगे। मैं एलएचएस ही सॉल्व कर रही हूँ पर सिर्फ बेसिक वन से। सो दिस इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, लेकर मैं वहां से भी जा सकती थी बेटा, वो लॉन्गर वन हो जाएगा। 1 माइनस कॉट थीटा विल बी कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को एल राइट कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो इसको 1 बाय 1 लिख देते हैं। नाउ डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो सबसे पहले। न्यूमरेटर में तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा ही लिखना है, वहां तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा अभी। एंड डिनोमिनेटर में 1 एंड साइन थीटा का एलसीएम इज साइन थीटा ओनली। एंड नाउ क्रॉस करो इसे, सो दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट बच्चा। और ये प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड नाउ क्रॉस हो जाएगा, दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट बेटा जी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को? मैम मुझे समझ नहीं आया। बेटू मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं बच्चा, देख यहाँ पे मैंने पहले सबको बेसिक वंस में चेंज कर दिया। tan is sin by cos, cot is cos by sin, cot is cos by sin, tan is sin by cos, सिर्फ वो चेंज किया मैंने। और उसके बाद मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया है। यहाँ 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे 1 और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा, और क्रॉस किया cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा एंड 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा। अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। अभी समझ में आया? अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? अच्छा आप ध्यान से देखो बेटा, दिस इज, मैं इसको इस तरीके से इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ये दोनों जाकर मल्टीप्लाई होते हैं ना लास्ट एंड फर्स्ट टर्म, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया? मैम कैन यू प्रोडक्ट चेंज ऑफ द मीन्स, कलर बोल टू रेड बच्चा क्या? कलर? रेड कलर को क्या करूं, व्हाइट कर दूं? सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है सबको ये कि नहीं आ रहा? समझ में क्या हुआ ये समझ में आया? अब प्लस का साइन अगेन वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ एक स्टेप है जो नया सिखा रही हूँ, मतलब ये अपने आप से क्लिक नहीं करेगा, तो सीखो बच्चे। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों सिमिलर बनाए जा सकते हैं ताकि एलसीएम आसानी से लिया जाए, है ना। कैसे सिमिलर बनाए जा सकते हैं? इफ यू टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस, याद करें एक बार कैसे। अगर मुझे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा गिवन है, अगर मैं दोनों से माइनस को कॉमन लूं, बेटा एवरीवन आइज ऑन स्क्रीन, कोई इधर उधर नहीं जाओ प्लीज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अगर मैं दोनों से माइनस कॉमन ले लूं तो ये पॉजिटिव चीज का मतलब होता है इसके पास 2 नेगेटिव्स है, एक नेगेटिव बाहर आ गया, एक नेगेटिव अंदर रह गया। और इस नेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव एक प्लस एक माइनस है, अनलाइक साइंस है, तो माइनस बाहर आ गया तो प्लस अंदर रह गया। तो देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, कॉस थीटा पहले आपको पॉजिटिव गिवन था और साइन थीटा नेगेटिव था। जैसे ही मैंने माइनस को कॉमन लिया तो क्या हुआ, साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, कॉस थीटा नेगेटिव हो गया।
आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? याद है ऐसे ही करते थे जब आप ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, अगर a प्लस बी है तो कैसे सॉल्व करते थे? माइनस ए माइनस बी, साइन रिवर्स हो गए ना। या फिर और दूसरे तरीके से सोचो, अगर ये a माइनस बी है तो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो a नेगेटिव हो जाएगा और b पॉजिटिव हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन करते हो तब भी तो साइन रिवर्स होते हैं ना। तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तब भी तो साइन रिवर्स होंगे ना, है ना। ये जो साइन अगर नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो कॉस पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा। बच्चे आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? कि मैं इन दोनों को किस तरीके से सेम बना सकती हूँ? आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? एक बार इसको क्लीन करती हूँ मैं यहाँ पे, सारी जो एक्सप्लेनेशन है। मैंने ये क्यों कर रही हूँ मैं ये काम, क्योंकि मुझे ना बहुत सारा एलसीएम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एलसीएम कैसा इजी करते हैं, आप प्रोडक्ट ऑफ सब चीजों का ले लेते हो, है ना। तो यहाँ पे सोचो, यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। प्रोडक्ट अगर आप ये कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, चार चीजों का प्रोडक्ट एलसीएम में संभालेंगे कैसे उसको? तो इट इज गुड अगर कॉस हो साइन हो और ये दोनों एक ही हो जाए तो, है ना बच्चे। एलसीएम लेना आसान हो जाएगा ना। आ रही है बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? है ना। मैं एक बार क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ। यहाँ तक सब लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, है ना। मैं एक बार इसे क्लियर कर रही हूँ और मुझे बताना ये जो मैंने लास्ट लिखी है स्टेटमेंट, मैं कहीं कोई लिखने में साइन की गलती नहीं करूँ। और इसको मैं दोबारा से स्क्रीन पे लिख रही हूँ ताकि आई शुड हैव स्पेस टू सॉल्व दिस नाउ। और थोड़ा सा थिनर पेन से आई स्टार्ट राइटिंग। क्या है जल्दी से बताओ? साइन स्क्वायर थीटा बाय cos square theta into sin square minus cos square. कॉस स्क्वायर था, स्क्वायर्स नहीं होंगे यहाँ पे। cos theta. cos theta. ठीक से बताओ बच्चे प्लीज, गलत नहीं बताओ। फिर से बोलो, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है ये। Ma'am, cos square theta into sin square. Sorry, sin theta minus cos theta. मैम cos स्क्वायर थीटा नहीं है मैम, cos cos square थीटा नहीं है। cos प्राची थीटा सब गड़बड़ करा दे तू बेटू। मैम sin स्क्वायर रुक थीटा। जा, साइन स्क्वायर ऊपर है नीचे कॉस है, ठीक है ओके। राइट, सो इट इज साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। एंड दिस प्लस का साइन देन cos cos square theta, स्क्वायर थीटा and this is sin theta, and then cos theta minus sin theta. sin थीटा। राइट नो बच्चा, यही है। अब मैंने आपको ये बोला कि मुझे इसमें से एक माइनस कॉमन निकालना है ताकि मैं इसे और इसे सिमिलर बना सकूं। तो लेट्स डू दिस। कैसे कर रही हूं मैं इसे? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच्चे। And now minus taken common from here will change this sign. यहाँ पर क्योंकि माइनस आ जाएगा, वो ऑब्वियसली इस साइन को चेंज करेगा। कोई प्रॉब्लम है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जो माइनस आपने लिया है कॉमन उसकी वजह से ये प्लस साइन विल चेंज इनटू माइनस का साइन, एंड दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इनटू साइन माइनस कॉस थीटा। राइट और नॉट बच्चे? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? Ma'am, I do not understand. Can you please repeat? बेटू, I took this from this I took negative minus sign as common. वो Yes, माइनस साइन यहाँ आए, न्यूमरेटर के साथ आए और इस प्लस का साइन चेंज कर दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। जो यहाँ माइनस कॉमन आया था उसे ऊपर शिफ्ट न्यूमरेटर को दे सकते हो, वो न्यूमरेटर और ये साइन चेंज कर देगा ना, ये प्लस है और ये माइनस है, देन तो प्लस माइनस टुगेदर माइनस हो जाएगा ना। अच्छा ma'am, you change the sign. Okay. यस, क्योंकि आपको एक फ्रैक्शन का एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक चीज नेगेटिव रखना है। तो Yes, ये ma'am. प्लस है, ये चीज माइनस हो गई, तो वो ऑब्वियसली प्लस और माइनस माइनस हो गया ना। Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना समझने में? सबको समझ में आ गया? अब हाँ, एलसीएम लेते हैं। क्या बेटू बोलो? मैम वो जो माइनस का साइन है वो ब्रैकेट के बाहर होगा ना, तो वो साइन बेटू के बाद। हाँ, तो अगर आप 2 और a माइनस बी में से माइनस कॉमन लोगे बेटा, तो ये 2 माइनस a माइनस बी थोड़ी हो जाएगा बच्चे।
ये -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -2 इंटू a माइनस बी हो जाएगा ना बच्चा। तो वो ओके साइन के आगे आ गया, अब वो साइन के आगे आया तो उसने बीच का साइन चेंज कर दिया। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? है ना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस में अप्लाई होगा ऐसे ही। तो अभी क्या करें, अभी अब एलसीएम ले लो। अब इजी है एलसीएम लेना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रोडक्ट लेना है। एलसीएम इज वेरी इजी। सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ही बार, क्योंकि तो सेम चीजें हैं, सेम चीजों का एलसीएम तो एक ही बार लिख लेते हैं, है ना। ऐसे ही करते आए हैं ना हर बार। अगर ये 2 इंटू 3 है और ये 2 इंटू 5 है तो एलसीएम कैसे लेंगे? सेफेस्ट तरीका है 3 इंटू 5 इंटू 2। 2 को तो एक ही बार लिखेंगे ना बच्चे, है ना। जो सब रूल्स नंबर्स पे सीख के आए हो ना, अलजेब्रा पे, ट्रिको पे, सब पे वो रूल्स लगते हैं। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, देखो डिनोमिनेट एलसीएम में जो टर्म डिनोमिनेटर से एब्सेंट होती है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। आप इसे बचपन के मेथड से याद करो तो एलसीएम डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, जो बचता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही करते हैं ना, यही बेस था एलसीएम और डिनोमिनेटर का, है ना, ऐसे ही था ना। तो अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस, साइन से साइन, और साइन बचेगा। वो साइन साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ किसी को? मैम ये क्या हुआ? एक्सक्यूज मी बेटो मैम। आप क्या, अच्छा मैं आपको समझाती हूँ क्या करते हो। रुको 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 रुको, सुनो 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 मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि 5/2 प्लस 2/5, 5 3 3 5, क्या करूँ, ओके 5, ठीक है। अब 10 ले लिया आपने एलसीएम, तो आप कैसे करते थे? 10 को एक्चुअली 2 से डिवाइड करते हैं, 5 आया, उस 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 25। या तो ये लॉजिक लगाते थे, है ना, ये बेस था। और या फिर होता क्या था, इसको भी 10 बना दो इंटू 5 करके तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी 10 बना दो इंटू 2 करके तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये 25 प्लस 4। ऐसे ही करते थे ना बेटा नंबर्स को सॉल्व। बिल्कुल वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि आप कौन सा वाला मेथड लगा रहे हो, कि जब आप डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हो, जो आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो। ये बेसिक थे जो 5th क्लास में इंट्रोड्यूस किए गए थे, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 आ रहा है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब हम 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 एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। कॉस वहां है कैंसिल, साइन माइनस कॉस वहां है कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा। और वो साइन थीटा जो बचा वो कहाँ जाएगा, वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो बच्चा ध्यान से नहीं सुन रहा है ना अर्नव, कुछ समझ में आने वाला नहीं है बेटा इसके बाद। साइन क्यूब थीटा, आई बेट तू किधर भी एक्सप्लेनेशन देख लियो, इतना डेप्थ में नहीं समझाएगा कोई जितना मैं लगी हुई हूँ इस पे। एक्सक्यूज मी मैम। मैम सबके लिए फ्रोजन है क्या? हाँ मिष्टी, अर्नव और मैम तीनों मेरे लिए नहीं दिख रहे, और साची गुप्ता। जनीशा भी आई थिंक। नहीं नहीं जनीशा है अब एक ही एरिया में रहे। हाँ सब एक ही एरिया में रहते हैं। लगता है हाँ लाइट गया है, लाइट गया। वाह। पूर्वी तुम अभी एपीएस भटिंडा में जाओगे, वहां पे पूर्वी चली गई ना लोकेशन। एपीएस बठिंडा में। According to me, अभी नहीं नहीं, अब मैं नानी के घर पे हूँ। अभी मैं सेक्शन पूछूंगा उससे, मेरा एक दोस्त है वहां पर, ठीक क्या है। नाम? Is it वृतिका वृतिका। के लिए रिकॉर्ड हो रहा है? मैम आ कैन गई। यू हेयर हाँ मी बच्चा? रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ सब रिकॉर्ड हो रहा था, सब मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। नो मैम। कोई बात नहीं, वो आएगा, सब रिकॉर्डिंग में आएगा। मैं मैम अच्छे से अर्नव ध्यान का से देख हालत कर तो। देखो मैम। मैम आप कहाँ गए थे मैम, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे मैम। अच्छा हाँ, मैं कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगी तुम मुझे कितना मिस कर रहे थे बेटा। मैम लाइट गई मैम, लगता है आपके एरिया की मैम।
हाँ बच्चा, एक ये थोड़ा सा कल रात से दिल्ली में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो उस वजह से मेरे यहाँ पे मेरा चली गई सब मैम लाइट। मैम आपके पीछे तो प्रॉब्लम्स मैम लाइट मेरा। है मैम। हर हाँ आपके घर पे अर्नव नहीं के है। नहीं, अर्नव के घर में गई, मेरी तो फ्लक्चुएट हुई बस, अर्नव की ओ तो टोटल गई। मैम पूरे बाय दिल्ली में बाय। नहीं है। मिष्टी, आप, अर्नव और साची गुप्ता सबकी यस वो मैम, चली गई सब थी। एक साथ गए मैम। हाँ तो हम सब एक ही जोन में रह रहे हैं ना, इसीलिए वेस्ट दिल्ली है ना सबका। अच्छा अभी क्या करें? आपके अभी यहाँ तो मैम लाइट आ रही है मैम, लेकिन पता नहीं क्यों आ रही है बेटा, आने इन्वर्टर है देना, मैम आपके पास? क्लास चला ले। नहीं नहीं, इन्वर्टर पे नहीं है सिस्टम, ओ इतना सारा सिस्टम इन्वर्टर पे होगा? क्या पता इन्वर्टर पे मैम। एक फैन एक लाइट होती है बेटा बस। हाँ, मेरे घर में भी लाइट चली गई है, वो तो इन्वर्टर पे ही चल रहा है। पर इन्वर्टर पे पूरा सिस्टम नहीं ना हो सकता मेरा बेटा, इतना बड़ा सिस्टम है, क्या क्या इन्वर्टर पे सेट करूंगी इसको। चलो आ जाओ वापस, चलते हैं, कहाँ चढ़े हम। जनरेटर लगा अब तो मेरे पास मैम वो आ रहा है लाइट एनोटेशन भी में। नहीं है, मुझे मुझे वापस लिखना पड़ेगा सब कुछ, यार फंस गई मैं तो। मैम 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 ब्लैक। ऑलरेडी बच्चे हैं मैम, आप फिर से क्यों लिख रहे हो? क्या बेटू? लिखेंगे क्या, क्यों क्यों हमने साइन ऐसे चेंज किया, लाइक कुछ नहीं लिखना, एग्जाम्पल। करते जाओ, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। एलसीएम लिया, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। और अब क्या Ma'am, I करेंगे? still वही एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर गेटिंग साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होकर ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा बच्चे, माइनस अगेन एलसीएम डिवाइडेड विद डिनोमिनेटर, देखो सब कैंसल ऑफ हो जाएगा और बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। और इस कॉस थीटा को आप क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो दैट विल बी कॉस क्यूब थीटा। अब आप ma'am, I यहाँ did not लिखेंगे understand uh, यस बच्चे, how tell me। if the LCM is the product of both denominators, shouldn't sin theta minus cos theta also be multiplied with sin theta minus cos theta? Square में हो जाएगा वो। नहीं बेटू, दैट इज ओनली रिटन वंस बच्चा। अच्छा चल ऐसे समझ, एक रैंडम क्वेश्चन करते हैं, 15 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। हाँ, इसको 1/15 प्लस 1/10 को सॉल्व करते हैं बच्चे। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं? 15 को वी कैन राइट एज 3 into 5 एंड 10 को वी कैन राइट एज 2 into 2 5। into 5. 2 into 5। एलसीएम क्या लेगा बच्चे? क्या होता है 15 और 30 10 ma'am. का एलसीएम क्या होता है? 30. 30 कैसे? 30 मीन्स 3 into 5 into 2. Yes. देखो 3 एक बार, जो अनकॉमन है 2 एक बार, और जो कॉमन है उसे एक ही बार तो लिखा बच्चा। 5 को 2 बार थोड़ी लिखा बेटा एलसीएम लेते हुए। गेटिंग इट बच्चा और नॉट? कविश, नहीं आई बात समझ में बेटू? आ Ma'am, आ गई गई ना? आ गई आ गई आ गई. ये साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस रिपीट हो रहा है बेटा फैक्टर्स में, कॉस साइन और साइन माइनस कॉस। मैंने 4 फैक्टर्स को 3 में रिड्यूस कर दिया, अब ये 3 फैक्टर्स तो लेने ही पड़ेंगे ना बच्चे। आ गया सबको, ये लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है चलो अब मैं ये नंबर्स मैम हटा देती हूँ। देखो जिन्होंने बचपन में कैलकुलेशन अच्छे से सीखी ना, उनको तो यहाँ आसानी से समझ में आ रहा मैम मैंने है ना बचपन में जिनको? कैलकुलस सीख लिया था मैम। वाह गुड, वेरी गुड। कैलकुलेशन तो ऐसी मैम। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको जल्दी से अब कंप्लीट करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। कोई बिना कहीं से चेक किए याद करके बता सकता है क्या मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी मैम मैं हमने बताता हूँ कैसे याद मैम। की थी? क्यों हमने Ma'am, कैसे a याद की थी? minus b, a square plus b square plus ab. राइट, तो हमने इसे कैसे याद किया था? फर्स्ट ब्रैकेट में सेम साइन और ए बी का साइन रिवर्स होता है, स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसे ही किया था ना यार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का साइन कैसे याद किया था? आइडेंटिटी कैसे याद की? फर्स्ट ब्रैकेट सेम साइन, अगर ये प्लस का है तो ये प्लस ही होता है, स्क्वायर्स ऑलवेज पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए भी रिवर्स साइन का होता है, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ऐसे ही याद की थी ना हमने ये आइडेंटिटीज, याद रखना ये 2 क्वेश्चंस यस में मैम। यूज होने वाली है दोनों ये आइडेंटिटीज। तो मैंने यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी यूज करनी है, इसका मतलब मुझे पहले एक बार ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना है जी, टाइम्स, अब ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखो यहाँ तो आइडेंटिटी लग गई बच्चा, 1 हो जाएगा ये तो, है ना? पर बाद में करेंगे, पहले डिनोमिनेटर लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को तो बताओ?
कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो किसी को? लेट्स मेक दिस वन नाउ। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस इंटू कॉस थीटा थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ कैंसिल ऑफ होता दिख रहा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। राइट, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा? यहां से क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है बेटा, यहां से क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये है आपके पास। अब आप क्या करो, एलसीएम को दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कर सकते हैं ना हम ये काम? जब दोनों को कॉमन लेके एलसीएम ले सकते हैं तो दोनों को अलग फ्रैगमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। कोई ऐसा जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आया हो? अब आपको क्या करना है, ये कैंसिल ऑफ कर दो, इसका आंसर 1 हो गया बच्चे। और 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा लिख देते हैं। और 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा। और +1 बन गया ये आरएचएस के नहीं बना बच्चे? मैम 1 माइनस ये सब कैसे हुआ? बेटू आपने देखो, आप क्या करते हो, अगर मैं 2/3 प्लस 4/3 करना चाहती हूँ तो आप दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो आप 3 को एक बार ले लेते हो ना एलसीएम, है ना? ये तो खैर क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। 2/3 प्लस 4/3 अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करते हो, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो वंस लिख देते हो और ऊपर 2 + 4 को सॉल्व कर देते हो 6/3, ऐसे ही करते हो ना? तो अगर मैंने आपको ये दिया है 2 + 4/3 तो क्या आप ये काम कर सकते हो 2/3 + 4/3? रिवर्स ही तो करना है उसको, दोनों को दे दो उनका एलसीएम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके। वही काम आपने यहाँ पे किया है। आपने साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को दे दिया। किन दोनों को? 1 को भी दे दिया और साइन थीटा कॉस थीटा को भी दे दिया, है ना? पहले इस 1 को भी दे दिया और इसे भी दे दिया। अब ये एग्जाम में क्लिक नहीं करे तो पता नहीं कैसे होएगा। फिर आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ पर रोक दो क्वेश्चन को, कि मैं इससे आगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, और इसे आरएचएस को सॉल्व करो। ये हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा विल बी 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका एलसीएम लेके देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटे से पोर्शन में सॉल्व करो, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, इसका क्रॉस करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा +1। देखो बन गया ना? तो आप चाहो एलएचएस और आरएचएस को दोनों को किसी एक इंटरमीडिएट पे लाके इक्वल कर दो, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली वैलिड। और आप चाहो तो दो एलएचएस को आरएचएस की तरफ जबरदस्ती लेकर जाओ। मैम आ गई 1 सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलो मैम बिट्टू। मैम तो ये सेक और कॉसेक में कैसे चेंज हुआ, मेरे को समझ नहीं आया। मैम वही बेटू आप देखो 1 बाय साइन थीटा तो कॉसेक थीटा होता है ना, और 1 बाय कॉस थीटा उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सेक थीटा होता है। तो 1 बाय साइन बना दिया आपने कोसेक और 1 बाय कॉस आपने बना दिया सेक, मैम तो और साइन थीटा +1 था कॉस ये तो। और ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा कट के 1 हो गया, ये वाला 1 आ गया। नहीं आया? एक बार दोबारा समझाऊं ये वाला स्टेप? यस मैम, लास्ट है। देखो लास्ट स्टेप में फिर से लिखती हूँ, क्या था बोलो जल्दी से, स्टेप क्या था? साइन थीटा कॉस थीटा। मैम 1/sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ये ऐसे था, है ना? हाँ यही था कुछ ना बच्चा? प्लस। यही था ना? अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो एलसीएम है उसे दोनों न्यूमरेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये पूरा कैंसिल ऑफ होकर 1 आ गया,
और यहाँ पर 1 इंटू साइन थीटा और ये 1 इंटू कॉस थीटा है ना। 1 इंटू साइन थीटा इज कोसेक थीटा और 1 इंटू कॉस थीटा इज सेक थीटा। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों, यही तो आपको चाहिए यहाँ पे, यही तो चाहिए दोनों मल्टीप्लीकेशन में। और +1 चाहिए, तो ये तो रहा वो +1। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्लियर हो गया सबको ये स्टेप? यस मैम। अब इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से करना, बार बार सॉल्व। जो कहीं पे भी स्टक हो जाए रिकॉर्डिंग से देखकर सॉल्व करना। ओके, अब यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक जो कवर कर लिया। अभी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th जो आएगा आगे, लेकिन इसका नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और चाहोगे तो एक बार पूरी ये एक्सरसाइज दोबारा भी सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है, ताकि अच्छे से प्रो हो जाओ। चलो आज के लिए वाइंड अप कर रहे हैं बच्चा लोग।